Welcome back, my dear students. Uh, so, beta, let's start our today's lecture for class 5, subject English reader, chapter number 1 poem. Okay, as it is poem and chapter name number is not given, that is why we will consider it as chapter number 1. Okay, poem. Lecture number 1, term 3 essence. Our topic is the fox wedding. This is a poem. Okay, so this poem was written by Harendranath Chattopadhyay, we can say H.R. Chattopadhyay. So he was an Indian poet. And the Fox Wedding is a very interesting poem in which the guests were invited from different countries, and they brought different gifts for the Fox Wedding. So let's check how many gifts the fox received during his wedding, and who were these guests, and who came in the last, okay, in the party, because of whom there was a little fuss in the wedding. Okay, so let's start. We will start with word meaning first of all, beta. So take out your notebook and make a format. This is your lesson, the fox wedding. Fox wedding मतलब लोमड़ी की शादी. So here we will see rhyming words also. I hope you will enjoy this poem very well, and you will see the uninvited guest also who came in the last and through which there was a fuss in the wedding. But if the ends well, then everything becomes well. So let's find out and let's search for these things. Start with word meaning. I hope you have opened your notebook. Write down word meaning in the middle and make a format along with date and all. First word meaning is, first is grinning. 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 Grinning is मुस्कुरा रहा है या फिर हंस रहा है. ओके, मुस्कुरा रहा है या फिर हंस रहा है. यू कैन ऑल्सो राइट. सेकेंड वर्ड इज इनामल. इनामल इज बेटा ग्लासी डेकोरेशन ऑन मेटल, और इन हिंदी वी कैन से तामचीनी, जिसके ऊपर थोड़ा ग्लास का डेकोरेशन होता है, उसको बोलेंगे हम तामचीनी. इट्स मीन्स न्यू वर्ड फॉर यू. You can write over here and you can write it also. Enamel is tamchini. Third word is zoology. 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 Zoology is a study about the animals. Okay, तो इसको बोलेंगे हम that is a branch of science which studies animals, or we can say जीव विज्ञान. जीव विज्ञान. Fourth word is apology. Apology is sorry. APOLOGY. Apology is sorry, या फिर you can say in हिंदी माफ़ी. Apology is माफ़ी. Fifth word is civil. Civil is polite, vinamr. We can say namr also. That is also correct. Okay. Civil is polite, namr. Next word is, and a few more words which seems difficult for me, means according to your level. These word I will tell you step by step when I teach you this lesson. Otherwise, one more word you can write, that is feast. Feast is dawat, though it's not a word meaning given highlighted in your book, but I think this word is new for you, because whenever you join a party, whenever you attend a marriage, you can say I have attended a party where the feast was very delicious. Okay, now let's start poem reading. The fox wedding मतलब लोमड़ी की शादी. So along with means while reading this lesson, okay,
we will see rhyming words also. So let's start. This is a fox wedding. I already told you about this lesson. What is given in the lesson, how many guests are invited in the party, this we will see while reading. And there is also one uninvited guest also, and how do they attend, how does he attend the marriage, and what happens when he attend the marriage. So these things are also given here, that we will these things will be revealed one by one. So let's start. The cloud is dropping its rain in the sun, for the fox wedding has just begun. Okay, so what is given here, the cloud is dropping मतलब नीचे उतर रहा है, और we can say the cloud is dropping, इसका मतलब यहाँ पे भी कह सकते हैं the cloud has covered the sky because now the sky become cloudy. ठीक है. It's rain in the sun मतलब sun में भी, as there is a sun in the sky also, बारिश हो रही है जहाँ पे सन भी है अभी जिस टाइम अवेलेबल है स्काई पे. ओके, वहाँ पे सन भी है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है. फॉर द फॉक्स वेडिंग मतलब कि लोमड़ी की शादी के लिए, क्या हो रही है, रेन भी हो रही है, सन भी है वहाँ पे अवेलेबल, सन भी अटेंड कर रहा है मैरिज को. हैज़ जस्ट बिगन जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुई है. ओके, बिल्कुल स्टार्ट हो गई है. हैज़ जस्ट बिगन. ड्रॉपिंग, वेडिंग, सन, बिगन, these are rhyming words. Okay, dropping, wedding, sun, begun. Okay, next stanza. So these are stanzas, not paragraph. I am again telling you, these are not paragraph, these are stanzas. In poem stanzas are given, and whenever we read a story the paragraph is given there. Okay, let's start. Second stanza. From forest and plain and mountain side, guest brings gifts for the fox and his bride. मतलब कि फॉरेस्ट से, प्लेन एरिया से, माउंटेन साइड से गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट. जो गेस्ट हैं वो क्या लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं. किसके लिए, फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड, फॉक्स के लिए, लोमड़ी के लिए, और उसकी ब्राइड के लिए, मतलब दोनों के लिए क्या लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं. एंड इट हैपन्स विद अस ऑल्सो. इफ आई एम गोइंग टू अटेंड अ मैरिज, या फिर आई एम गोइंग टू अटेंड माई कजन्स मैरिज, what will I do first? First of all, I will arrange gifts for them. Okay, otherwise our parents arrange gift for them, and then we hand over these gifts in during the wedding. Okay, the same process was taken by guests also. They brought gift for fox and his bride. Next stanza on the next page. Here comes the first, a grinning hyena, it's hyena, who brings a charming bowl from China. Okay, तो पहले फर्स्ट गेस्ट कौन आता है, अ ग्राइनिंग मुस्कुराता हुआ हेना. हेना इज लकड़बग्दा मीन्स इट अ काइंड ऑफ अ एनिमल. ये एनिमल है, एक ब्रीड है एनिमल की. दिस ब्रीड इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट इन सम टाइम, मतलब ये लुप्त हो रही है वैसे. ठीक है बेटा. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्रीड. इट सीम्स लाइक अ फॉक्स ऑल्सो, मतलब फॉक्स की तरह ही थोड़ा दिखता है ये. इट अ कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस है जो कि मांस पर डिपेंड होता है, मांस खाता है जो. Who brings a charming bowl from China? तो चाइना से क्या लेके आता है, चार्मिंग, बहुत सुंदर सा बाउल लेके आता है. बिकॉज चाइना इज़ फेमस फॉर बाउल्स, तो वहाँ पे बाउल ज़्यादा मिलते हैं, चीनी के बाउल जो होते हैं, तो वहाँ से वो चाइना से क्या लेके आता है. ओके, ही ब्रिंग्स बाउल फ्रॉम चाइना. हियर कम्स द सेकंड. अब सेकंड गेस्ट आता है, अ लायन बोल्ड, मतलब एक बोल्ड लायन, हट्टा खट्टा सा लायन आता है. हुज गिफ्ट इज़ अ मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड, जिसका गिफ्ट क्या है, एक मिरर है, एक शीशा है. किसका, अफ्रीकन गोल्ड का बना, अफ्रीका में जो गोल्ड है उसका बना हुआ एक मिरर लेके आता है लायन. ओके, दिस इज द सेकंड गेस्ट. नाउ थर्ड. हियर कम्स द थर्ड. अब थर्ड गेस्ट आता है, अ क्रोकोडाइल, और वी कैन से एलिगेटर. ठीक है, एक क्रोकोडाइल आता है या फिर इसको हम एलिगेटर बोलते हैं. हुज गिफ्ट इज अ सिल्वर कप फ्रॉम द नील. ओके, तो उसका गिफ्ट क्या है, एक सिल्वर गिफ्ट है. ठीक है, सिल्वर कप है नील से. नील मतलब नील इज अ कंट्री, और वी कैन से रिवर, और रिवर भी है नील, तो वहाँ से क्या लेके आता है, कप लेके आता है सिल्वर का. हियर कम्स द फोर्थ. अ फोर्थ गेस्ट आता है, अ लॉन्ग नेक्ड कैमल, एक लंबी सी नाक, गले वाला, मतलब जिसके जो गला है बहुत लंबा है, वो गर्दन जो है बहुत लंबी है, कैमल आता है. हुज गिफ्ट इज अ कास्केट, उसका गिफ्ट क्या है, कास्केट है, ऑफ इंडियन एनामल, इंडियन एनामल का बना हुआ.
कास्केट इज़ अ संदूक, संदूक जिसे बोलते हैं हम, डिब्बा, ठीक है, तो उसको हम संदूक बोलेंगे वैसे। मे बी दी संदूक दी कास्केट आर अवेलेबल इन योर हाउस ऑल्सो, ओके। तो उसका एक जो गिफ्ट है वो कास्केट है, संदूक है, ऑफ इंडियन इनामल, जो कि इंडियन मतलब इंडियन तामचीनी, इनामल इज ग्लासी डेकोरेशन, जिसके ऊपर ग्लासी डेकोरेशन है तो उससे बना हुआ है, उसको हम तामचीनी बोलेंगे, ओके, उससे वो कास्केट बना हुआ है। हेयर कम्स द फिफ्थ, अब फिफ्थ गेस्ट आता है, अ मंकी हु राइट्स, एक मंकी आता है, हु राइट जो लिखता है, हिज गिफ्ट इज़ अ बुक, उसकी गिफ्ट क्या है, एक बुक है, द अरेबियन नाइट्स, जिसके बारे में, अरेबियन नाइट्स के बारे में, ठीक है, कि अरेबियन नाइट्स कैसी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, तो उसके बारे में उसकी एक बुक है, ठीक है, जो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, अरेबियन नाइट्स, तो वो एक बुक लेके आता है मंकी। हेयर कम्स द सिक्स्थ, अब सिक्स्थ एक गेस्ट आता है, अशी वोल्फ वेन, अब यहाँ पे कौन आती है, वुल्फ आता है, वेन घमंडी वुल्फ आती है, हु ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम स्पेन, जो कि ब्राइड के लिए मतलब दुल्हन के लिए एक स्कार्फ लेके आती है स्पेन से, ओके। स्पेन में मे बी स्कार्फ बहुत फेमस होंगे, वहाँ के स्कार्फ बहुत अच्छे होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो वो वहाँ से स्पेन से क्या लेके आती है, क्योंकि वो स्पेन से आती है तो वो क्या लेके आती है, ब्राइड के लिए मतलब दुल्हन के लिए एक स्कार्फ लेके आती है। यू कैन सी स्कार्फ हेयर ऑफ पिंक कलर, ओके। तो वुल्फ क्या लेके आती है, स्कार्फ लेके आती है। शी वुल्फ मतलब वो लड़की है। हेयर कम्स द सेवंथ, अब सेवंथ गेस्ट आता है, अब पोलर बियर, एक पोलर बियर आता है, हुज गिफ्ट इज़ अ ब्यूटीफुल रशियन चेयर, जिसका गिफ्ट क्या है, एक रशियन की चेयर, मतलब रशिया की चेयर है, वो बहुत फेमस होती है वहाँ पे, तो मतलब वो एक गिफ्ट लेके आता है, रशियन चेयर लेके आता है पोलर बियर, यू कैन सी हियर हिम। हेयर कम्स द एट्थ, अब एट्थ आता है, एट्थ गेस्ट आता है टू द फॉक्स मैरिज, फॉक्स की मैरिज में, अ हॉर्स हु हैज़ ब्रॉट हिम, एक घोड़ा जो कि उसके लिए लेके आता है, क्या लेके आता है, अ 5 व्हील्ड कैरेज, मतलब 5 पहियों वाला, 5 पहियों वाला रथ, पालना वी कैन से, और वी कैन से रथ हेयर, ठीक है, तो ये रथ लेके आता है ताकि वो उसको बैठा के उनको ले जा सके वहाँ से, ठीक है। तो एट्थ गेस्ट कौन होता है, हॉर्स। नेक्स्ट इज हेयर कम्स द नाइन्थ, अब नाइन्थ गेस्ट आता है, अ जैकल हु ब्रिंग्स द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम 2 डायमंड रिंग्स, अब नाइन्थ गेस्ट आता है एक जैकल, जैकल इज सियार, जो क्या लेके आता है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम के लिए, मतलब दुल्हन और दूल्हे के लिए 2 डायमंड रिंग्स, मतलब 2 डायमंड की रिंग्स लेके आता है जैकल, ओके। हेयर कम्स द टेंथ, अब टेंथ गेस्ट आता है, इफ़ यू प्लीज अनइनवाइटेड द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड, ओके। अब जो 10th गेस्ट आता है वो अनइनवाइटेड होता है, मतलब उसको किसने इनवाइट नहीं किया, ठीक है। द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड, और गेस्ट उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए, सारे गेस्ट, गेस्ट कौन है, सारे एनिमल्स हैं, लेकिन उसमें एक इनवाइटेड गेस्ट भी आ गया, ह्यूमन, तो वो उसको देख के सब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए, ये कैसा गेस्ट आ गया हमारी वेडिंग में, फॉक्स की वेडिंग में। ही कम्स फ्रॉम समवेयर, वो कहाँ से आता है, कहीं से आया है, कहीं से, समवेयर मतलब कहीं से आया है वो, एंड टीचर्स जूलॉजी, वो क्या पढ़ाता है, जीव विज्ञान, मतलब कि अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं की जो स्टडी है उसको हम जीव विज्ञान बोलेंगे, ओके। तो ये क्या पढ़ाता है, जूलॉजी पढ़ाता है। वट इज़ हिज गिफ्ट, उसका गिफ्ट क्या है, एन एम्प्टी अपॉलॉजी, एक खाली माफ़ी, मतलब वो माफ़ी मांगता है, वो कोई गिफ्ट लेके नहीं आया, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट अपॉलॉजी ही ब्रॉट, एक मतलब माफ़ी लेके आया, क्यों, बिकॉज हेयर ऑल द एनिमल्स आर इन द जू एंड दे आर सेलिब्रेटिंग फॉक्स वेडिंग, एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम अस, मतलब वो हमसे अलग होते जा रहे हैं एनिमल्स, उनको ह्यूमन बींग्स को डिस्टर्ब करते हैं, हर्ट करते हैं, दैट इज़ वाई ही ब्रॉट अपॉलॉजी, तो क्या लेके आया है वो, अपॉलॉजी, कि हमने तुम्हें हर्ट करते हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो ये टीचर आता है, ठीक है, वो टीचर्स जूलॉजी, अपॉलॉजी इज माफ़ी। बट वाई हैज़ ही कम, लेकिन वो क्यों आया है, टू द फॉक्स फीस्ट, मतलब कि फॉक्स की दावत में वो क्यों आया है, इट इज़ मोस्ट इन मैनर टू से द लीस्ट, मतलब कि
इतना कहना भी सबके लिए, अगर हम उसे ये कहेंगे, अगर हमारे घर पे कोई इनवाइटेड गेस्ट आ जाए तो अगर हम उसे पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो, तो ये हमारे लिए भी एक गंदी बात होगी, असभ्य बात होगी, अशिष्ट मैनर होगा, मतलब ये अच्छा मैनर नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ मोस्ट इल मैनर टू से द लीस्ट, मतलब ये बात कहने के लिए हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम क्यों आए हो, अनइन्वाइटेड हो, तुम क्यों आए हो वेडिंग में, तो हम उसको ऐसे भी नहीं बोल सकते। एनिमल्स इतने लविंग है बेटा कि वो उसको मना नहीं कर सकते अनइन्वाइटेड गेस्ट को भगाने के लिए, उसको भेजने के लिए, ठीक है। तो हम वो उस फॉक्सी वेडिंग में दावत में क्यों आया है, ओके। इट इज़ मोस्ट इन मैनर टू से द लिस्ट, मतलब ऐसे कहना बहुत इल मैनर्ड होगा, इल मैनर मतलब असभ्य होगा, अशिष्ट हो गया, गंदी बात होगी, बुरी बात होगी, ठीक है। द फॉक्स देन एड्रेस्ड, फॉक्स ने सबको एड्रेस किया, मतलब सबको इकट्ठा करके सबको बताया। द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, लेट अस बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्रेजेंट, मतलब कि जो गेस्ट जो वहाँ पे प्रेजेंट थे सबको एड्रेस किया, सबको मतलब बताया, कहा लेट अस बी फ्रेंडली, चलो हम फ्रेंडली होते हैं, मतलब फ्रेंड बन जाते हैं, एंड लेट अस बी प्रेजेंट, और हम खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी जेलसी हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर अटेंडिंग अ मैरिज इन विच वी विल शो आर गुड साइड, इन विच वी शो आर means we will be so pleasant and we will be so friendly towards each other, okay। तो ऐसे उसने फॉक्स ने सबको एड्रेस किया इस वे में, क्योंकि वहाँ पे एक अनइन्वाइटेड गेस्ट भी था, तो अगर वो उसको से फाइट करते या फिर उसको भगाते तो वो इल मैनर्ड हो जाता उनके लिए, तो उसने फॉक्स ने सबसे कहा कि चलो हम फ्रेंडली होते हैं और हम खुश रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं, ओके। लेट अस बी सिविल एंड नॉट मेक अ फस सिंस मैन आफ्टर ऑल इज अ बीस्ट लाइक अस, मतलब चलो विनम्र होते हैं, सिविल होते हैं, वैसे सिविल इज नागरिक होता है, ठीक है, नागरिक बोलते हैं सिविल को, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे विनम्र, मतलब नम्र, ठीक है। लेट अस बी सिविल, चलो हम नम्र होते हैं एक दूसरे के लिए, हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, एंड नॉट मेक अ फस, और कोई भी गड़बड़ भी नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंस मैन, क्योंकि आदमी, आफ्टर ऑल, मतलब आफ्टर ऑल जो एक आदमी है, एक जो मैन है, इज़ अ बीस्ट लाइक अस, हमारी तरह ही एक बीस्ट है, जंतु है, जैसे हम जंतु हैं वैसे एक आदमी भी जंतु है। जंतु बेटा, बीस्ट मतलब कि अर्लियर वी ह्यूमंस वर ऑल्सो एनिमल्स, ओके, हम भी एक एनिमल से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अर्लियर वी वर एप्स, हम भी मंकी की तरह, एप्स की तरह थे, हमारी भी एक वो थी टेल थी, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन होकर हम ह्यूमन बींग्स बन गए, ऐसे ही। तो उन्होंने क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत सिविल्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, और उन्होंने एवोल्यूशन जब हुआ, जब चेंज होती है अर्थ, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्टेशन सीख ली, उसमें अडेप्ट हो गए इस एनवायरनमेंट ने, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयरिंग करके वो सीख ली, लेकिन जो एनिमल्स है वो सीख नहीं पाए, इसलिए वो ह्यूमन्स की तरह नहीं बन पाए, ठीक है। तो वो भी एक एनिमल, वो भी, हाँ, ह्यूमन्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं बेटा। द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज्ड टू कंप्लेन, द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगॉट टू रेन, मतलब जो गेस्ट, जो अचानक जो गेस्ट आया, उसके अगेंस्ट जो कंप्लेन चल रही थी उनकी समाप्ति हो गई, वो खत्म हो गई सारी कंप्लेंट्स, ठीक है। सीज टू कंप्लेन, द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन, मतलब जो उसकी कंप्लेन जो उसके बारे में हो रही थी, जो गेस्ट आया था उसकी जो अगेंस्ट कंप्लेन थी वो सारी सीज्ड हो गई, मतलब समाप्त हो गई। द क्लाउड्स ऑफ अ सडन, और क्लाउड्स ने भी सडन मतलब अचानक से, फॉरगॉट टू रेन, बारिश करनी, बूंदेबांदी करनी, मतलब अब ड्रिजलिंग नहीं हो रही थी, बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, अब पहले बारिश हो रही थी ना फॉक्स की वेडिंग में, अब बारिश भी नहीं हो रही थी, क्लाउड्स भी बारिश करना भूल गया। द सन केम आउट, सन मतलब सूरज बाहर आ गया। बोथ गे एंड स्प्लेंडेड, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दोनों ही था, क्या था, खुश भी था और आनंद में भी, शांत, वो बड़ा शानदार दिख रहा था, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा आनंद में था, खुश था, प्रसन्न था, गेज प्रसन्न हेयर, ठीक है, आनंद, आनंदित है, प्रसन्न हेयर, वी कैन से कि वो दोनों ही था, खुश भी, शानदार भी था, बहुत सुंदर शानदार लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। द फॉक्स वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड, और जो फॉक्स की वेडिंग थी वो हैप्पीली समाप्त हो गई। तो दिस इज अबाउट द फॉक्स वेडिंग, एंड द अनइनवाइटेड गेस्ट वॉज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेंडेड फॉक्स वेडिंग, एंड ड्यू टू दिस many other animals got means angry, and at the end they learned that the human beings are also a beast like us, and the complaints against him ceased, and the wedding was happily ended.
I hope you understood this poem very well. The things which I told in this lesson seems very easy for you to understand. I don't think so you faced any problem while getting it through. And please, after this poem beta, read it again and do the word meanings in your English notebook. Okay, so the poem was written by Harindranath Chattopadhyay. Okay, he was an Indian poet who told there should be no differences between human beings and the animals because we all are beasts. We are not differentiate. We are not making any differentiation means between us or among us. Okay, so we should live like a happy family and we should not hurt animals. Okay, so this is about the fox wedding. In this way the fox wedding was happily ended and you also attend a marriage with me along with your teacher. Now your previous homework solution was assignment for which I already I will upload after this. Okay, and go through this assignment solution, and along with this today's homework is do these word meaning in your notebook, in English notebook. I'm telling you again. Grinning is मुस्कुरा रहा है because it ends with ing. Enamel is तामची. Zoology is जीव विज्ञान. Apology is माफ़ी. Civil is नम्र विनम्र. Feast is दावत. So these are only 6 word meaning. Thank you very much for watching this lecture. Please read the poem again. Bye bye everyone.